So today I'll be revising 3 topics from the Vision Current Affairs of May 2025. Right. So if you have the PDF or hard copy, soft copy, whatever, you can open that and we'll revise 3 topics today. The first one is caste census. Now caste census, let's see why is it in news and what all topics are there that we have to learn in this. So center has recently issued us notification for census. We all know कि census हुआ नहीं था. So census is now pending for 2026-27 के time पे होना है, which will begin from October 2026 in Ladakh and March 2027 across rest of India. So basically, because census is to be conducted, and this time we are having the first time digital census and the first time caste census, so that is why it is in news. Also recently there has been a special intensive revision going on of the electoral rolls of Bihar, so I think that will be in the next month's magazine. For here we have to understand why census is in news. Now since independence, हमारा जो census है that is conducted decennially. So that is every 10 years में हमारा census conduct होता है. Decennial census exercise is conducted. ठीक है. Now this is the first time that a caste data which is beyond scheduled caste and scheduled tribe, ठीक है, will be officially collected as a part of decennial census. So first time caste census will be conducted which is beyond scheduled caste and scheduled tribes. Discrepancy in state level caste census. Now states अपना census कराती रहती है but वो caste survey होता है, वो census नहीं होता. ठीक है. तो states they conduct their own caste surveys, जैसे कि बिहार ने किया, कर्नाटका ने किया, बट उसमें क्या होता है, दे लैक यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी विच लीड्स टू डाउट्स, और वो कंपेरेबल नहीं होते, रिलायबल नहीं होते. ठीक है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दैट. नाउ हाउ इज़ द कास्ट सर्वे डिफरेंट फ्रॉम कास्ट सेंसस? बिकॉज सेंसस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड है, मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक अ कास्ट सर्वे जिसको स्टेट्स अपने एंड पे करा सकती हैं. एंड सेंसस इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी. So in the 7th schedule, if you see, it is mentioned in entry 69 of the union list, right? इसके अलावा फर्स्ट टाइम डिजिटल मोड में कंडक्ट होगा. ठीक है. इट विल इनकॉर्पोरेट अ मोबाइल एप्लीकेशन टू डिजिटली रिकॉर्ड द डेटा अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल पेपर पेन मोड में तो हो गई होगा. ठीक है. इसके अलावा डेसिनियल एक्सरसाइज है, बट ये होता क्या है? व्हाट ऑल इज़ रिकॉर्डेड? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा. सो वेन एवर क्वेश्चन ऑन सेंसस कम्स, अ डेफिनेशन विल गो इन द इंट्रोडक्शन saying that it is a demographic, social and economic data relating to all persons in the country at a particular time. ठीक है. सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड रेगुलरली सिंस 1881. ये इंपॉर्टेंट है कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम से हमारे पास सेंसस हो रहा है. एंड द लास्ट सेंसस टुक प्लेस इन 2011 में हुआ था. उसके बाद 2021 में होना था, जो कि ड्यू टू कोविड इट कुड नॉट बी कंडक्टेड. लीगल फ्रेमवर्क if we talk about, so what are the constitutional and statutory provisions for conducting the census? लीगल प्रोविजन में हमने बात की कि यूनियन लिस्ट के एंट्री 69 में इट इज़ मेंशन दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू कंडक्ट अ सेंसस. ठीक है. आर्टिकल 246 टॉक्स अबाउट द 3 लिस्ट्स. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें तो सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990 दे प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है. जिसमें आपकी सारी ड्यूटीज़ and responsibilities of the of the census officers, registrar general and census commissioner, ठीक है, they are authorized to design the census per forma including addition of caste related questions. ठीक है. without the need of amending the act. So we don't need to amend the act because as per the census act of 1948 the registrar general and census commissioner is authorized to design the per forma of the census. History of census. In pre-independence India, we had the census which was being conducted since 1881, and castes were enumerated in each census held between 1881 to 1941. So if we see कि pre-independence time पे कास्ट मेंशन थी, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट टाइम होगा कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के बियॉन्ड जाके हम कोई कास्ट सेंसस ले रहे हैं. ठीक है. लास्ट ऑफिशियल डेटा हमारे पास है 1931 का. क्यों? जबकि 1941 तक हुआ था. तो 1941 का डेटा क्यों नहीं है? बिकॉज इट वॉज नॉट पब्लिसाइज्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2. नाउ द फर्स्ट सेंसस पोस्ट इंडिपेंडेंस 1951 में कंडक्ट हुआ था.
discontinuing caste enumeration except for SC and ST. So SC or ST का caste enumeration we used to take, but beyond that we used to not go into the caste census. In 1961, the central government asked the states to conduct their own caste surveys, ठीक है, एंड प्रिपेयर स्टेट स्पेसिफिक OBC लिस्ट, क्योंकि आप देखो रिजर्वेशन वगैरह आप किस बेसिस पे करोगे कि कौन से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उसके लिए आपको डेटा तो चाहिए, तो कास्ट सर्वे के बेसिस पे स्टेट्स वर ऑथराइज्ड कि आप कास्ट सर्वे करो. नाउ अलॉन्ग विद 2011 सेंसस अ सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC was also held, but its data has not been published. ठीक है, तो this was about that. कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 340 वी नो दैट द प्रेसिडेंट कैन फॉर्म अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द बैकवर्डनेस ऑफ द मतलब वेलनेस एंड ऑल दैट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग तो हमें क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड द सेंसस. ठीक है, तो सेंसस की नीड को जस्टिफाई करने के लिए पहला तो पॉइंट ये है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो इसलिए हम कास्ट सेंसस करवा सकते हैं. ठीक है, सेकेंडली इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग डेफिनेटली इफ़ यू नो कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड हैं, विच कास्ट नीड अपलिफ्टमेंट, तो आप बेटर पॉलिसी मेकिंग करोगे, बेटर यू विल इंश्योर कि उनको वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उन तक पहुँचे. ठीक है, पॉलिसी मेकिंग टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स एंड इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन. द OBCs, अब इसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि OBC ग्रुप आर्ग्यू करते हैं दैट यू नो दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज एंड दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ अपडेटेड डेटा. बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो OBC लिस्ट में नहीं लिस्टेड हैं, इसलिए दे आर नॉट एबल टू गेट द फैसिलिटीज़. ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन, इट इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स फॉर रिजर्वेशन. तो एक हम अफर्मेटिव एक्शन या फिर एक पॉजिटिव एक्शन जिसको हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर पाते हैं, दैट इज़ बेसिकली रिजर्वेशन इन एजुकेशन. नाउ वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज़ हेल्ड दैट कास्ट इज़ अ रेलिवेंट क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया और अ डोमिनेंट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग बैकवर्डनेस. बिकॉज इंडिया का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे सो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हैज़ ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया. सो कास्ट इज़ अ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप बैकवर्डनेस डिसाइड कर सकते हो एंड जिसके बेसिस पे रिजर्वेशंस हम डिसाइड करते हैं. डिमांड्स ऑफ OBC, रिजर्वेशन बाय वेरियस ग्रुप्स. अब आप देखो OBC का रिजर्वेशन जाट लोग मांगते हैं, उधर मराठा में महाराष्ट्र में मराठास मांग रहे हैं. ठीक है, सो दीज डिमांड्स कीप कमिंग अप. अब इस डिमांड्स को हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे या फिर कैसे फुलफिल करेंगे, सो वी नीड डेटा फॉर दैट. सो दीज आर द जस्टिफिकेशंस वाई वी नीड कास्ट सेंसस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है. ठीक है, डिमांड्स कीप कमिंग अप एंड अफर्मेटिव एक्शन लेने में हमको हेल्प करता है. सब कैटेगराइजेशन, अब OBC का सब कैटेगराइजेशन तो हो गया था. ठीक है, हेल्प्स इन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC एंड अदर ग्रुप्स टू हेल्प इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड एड्रेस द इंट्रा ग्रुप या फिर बोल सकते हो इंट्रा कास्ट डिस्पैरिटीज़, जैसे कि आपका इंदिरा साहनी केस में बोला गया था. ठीक है, जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC फॉर्म्ड इन 2017 इज़ येट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट. अब ये सब कैटेगराइजेशन या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, तो दिस हैज़ टू कम इवन इन SC एंड ST जो कि अभी नहीं है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस, अ सेंट्रल डेटाबेस of all castes enumerated with full transparency in an objective manner is necessary amidst various state level discrepancies in caste survey for a data driven good governance process. तो गुड गवर्नेंस प्रोसेस के लिए हमें एक नेशनल डेटा बेस चाहिए. ठीक है, विथ फुल ट्रांसपेरेंसी. अब इश्यूज़ क्या हैं, what are the issues associated with caste census? Data accuracy and reporting, self-reporting of caste identities and lack of proper training. Self-reporting of caste identities करेंगे क्योंकि आप बताओगे उनको कि क्या कास्ट है आपकी. ठीक है, and lack of proper training will lead to errors and will lead to unreliable data, will lead to misrepresentation. जैसे कि 2011 में जो सोशल एंड इकोनॉमिक आपका यहाँ पे हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था जो 2011 में,
reported inflated caste counts due to duplicate entries and misspellings, rendering part of the data unusable. ठीक है, so accuracy and reporting will be a problem. Classification issues, various variations in the caste classification between center and state list, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं एंड हर स्टेट में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो वेरी करती हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसीज होगा. फॉर इंस्टेंस, अ कास्ट लिस्टेड एट OBC इन वन स्टेट मे बी अनरिकग्नाइज्ड इन अनदर, जैसे कि जाट्स इन हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो क्योंकि हम ये कास्ट को जो देखते हैं हम स्टेट वाइज देखते हैं, तो एक स्टेट में वो बैकवर्ड हो सकती है बट दूसरी स्टेट में नहीं हो, तो इससे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी आएगी. Political sensitivity, recognition of certain caste may lead to demands for inclusion and reservation by other caste, जैसे political unrest create होगा. ठीक है, तो आपको इसमें ना ऐसे टर्म्स याद करने होते हैं, जैसे डेटा एक्यूरेसी आपने बोला. डेटा एक्यूरेसी में लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सेल्फ रिपोर्टिंग, इसकी वजह से क्या होगा, एरर्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, एग्जाम्पल 2011 SECC में डुप्लिकेट एंट्रीज़ हो गई थी जिसकी वजह से मिसस्पेलिंग और ये सब हो गया था. क्लासिफिकेशन इश्यूज़, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसीज हो जाएगा बिकॉज मे बी बैकवर्ड इन वन क्लास मे नॉट बी बैकवर्ड इन अदर स्टेट. ठीक है, एग्जाम्पल जाट्स इन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़, ठीक है, इट विल लीड टू डिमांड्स बाय अदर castes which will lead to political unrest. Example, Gujjar agitation in Rajasthan at one point demanded ST status based on social economic backwardness. Identity politics, कास्ट में अब कास्ट से अब हम कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वी वांट टू फेड अवे और ब्लर दीज कास्ट लाइंस. बट कास्ट सेंसस से क्या होगा कि हम डिमार्केशन उसका और तो नहीं बढ़ा रहे, तो इट में इंटेंसिफाई द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. अब आपके पास पूरा डेटा है, ठीक है, कास्ट सेंसस का. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ माइट यूज़ दैट डेटा फॉर क्रिएटिंग अ कास्ट डिवाइड. ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, एक डीपनिंग सोशल डिवीज़न हो सकता है. बिकॉज जो कास्ट को हम इंडिया से हटाने की कोशिश कर रहे थे, कास्ट सेंसस माइट ब्रिंग बैक दोज कास्ट आइडेंटिटीज़. ठीक है, इससे क्या होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स might come into play and it might deepen the social division. Privacy concerns, collecting caste data may digitally raise concerns about caste security, about data security, privacy, especially in rural areas with digital limited literacy. ठीक है, तो क्या होगा कि डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी का एक इशू आएगा. आप उनको सारी डेटा दे रहे हो, अपना कास्ट का भी डेटा दे रहे हो. ठीक है, उससे प्रिवेसी का इशू आएगा, डेटा सिक्योरिटी का इशू आएगा. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. कंसल्टेटिव प्रोसेस, ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द कास्ट ऑफ एंड द सेंसस कमिश्नर, दे मस्ट कंसल्ट विद academics, caste groups, political groups and public at large to devise a method of caste enumeration accurately. एक ऐसा मेथड डिवाइस करो by taking the opinions of public, the caste leaders or the caste groups, political groupings, academicians. ठीक है, caste directory, a comprehensive national directory of caste should be created in the upcoming census, standardizing the classification and nomenclature of various caste groups across the state. इसमें क्या है, देखो, the government should enlist sociological, anthropological experts. आप इन लोगों को एम्प्लॉय करो, sociological and anthropological experts को, to drop a draft list of caste specific to each state, publish the draft list online, invite suggestions and comments from public before finalizing it, and give only that list to the enumerators. ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि आप जो स्टाफ है जो सेंसस कंडक्ट कर रहा है, जो डोर टू डोर जा रहा है, उनको ट्रेन करो कि मिसस्पेलिंग्स ना हो, एरर्स ना हो. ठीक है, टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड स्पेलिंग एरर्स. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक AI, बिग डेटा एनालिटिक्स दैट कैन बी यूज टू मिनिमाइज द एफर्ट्स. ठीक है, पीटर ड्रकर का आप एक ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कोट, what gets measured gets managed. ठीक है, so this was one topic. Second topic that we'll be doing is schemes में से अटल पेंशन योजना. अभी जो अटल पेंशन योजना है, sorry for this page being so
टाइडी। तो जो ये अटल पेंशन योजना है ये बेसिकली किस लिए, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी या फिर एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए उन लोगों को जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दोज पीपल जो लोग किसी भी उसमें लिस्टेड नहीं हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते, मतलब टैक्स पेयर्स नहीं हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। नाउ टू इनकरेज वॉलंटरी सेविंग फॉर रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स एंड वॉलंटरी सेविंग फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, लिंक्ड टू एज एंड ज्वाइनिंग अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओल्ड एज में देनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है 2015 में इट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। PFRDA इसको रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड इट इज़ अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड नॉट अ स्पॉन्सर्ड वन। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें 100% बाय सेंटर, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओपन टू ऑल एजेस बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, याद रखने वाली चीज़ है, नॉट फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, मतलब आप इतना वेल ऑफ हो, आपकी इतनी अर्निंग है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम एंड वन शुड हैव अ बैंक अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम तो बैंक अकाउंट से ही कटेगा। 215 रुपये का 400 कुछ रुपये का प्रीमियम है शायद इसमें, नहीं सॉरी, हम वो वाला उस वाली स्कीम में था, इन द जीवन ज्योति बीमा योजना। एनीवेज, बेनिफिट्स क्या हैं आपको, 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स यू विल गेट मंथली पेंशन ऑफ 1000 to 5000, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लाइफ लॉन्ग पेंशन, फैमिली पेंशन प्रोविज़न है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा। प्री मेच्योर डेथ हो गई 60 ईयर्स से पहले की, तो स्पाउस कैन कंटिन्यू टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू APY। पेमेंट का क्या है कि आप पेमेंट कर सकते हो, इसमें क्वार्टरली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, या फिर हाफ ईयरली कर सकते हो। यू कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इसके बाद एग्जिट एंड विड्रॉल ऑप्शन, 60 ईयर्स के बाद तो आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एग्जिट एट 60 मतलब पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने 60 से पहले आपको एग्जिट करना है, दैट कैन बी ओनली इन द केस ऑफ डेथ और टर्मिनल इलनेस। वॉलंटरी अगर आप एग्जिट करते हो, सो यू विल गेट योर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस द इंटरेस्ट, बट जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो फोरफीट हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी फोरफीटेड। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये अर्ली सब्सक्राइबर्स के लिए था, बेसिकली जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सब्सक्राइब किया था, ठीक है। अप टू मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड अप टू 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और 1000 per month, विच एवर इज लोअर फॉर 5 years गवर्नमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट। Now, this applied only to subscribers not covered under any statutory social security scheme and not income tax payers. अब इसका देखो बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप इसमें देखो इस स्कीम को, तो 47% जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन है, ठीक है। सॉरी, टोटल सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने इस स्कीम को सब्सक्राइब किया, 47% ऑफ वुमेन हु आर एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम, and 7.66 crore individuals have subscribed to this scheme. So ये किसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना। अगेन 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, 2015 में स्कीम लॉन्च हुई। जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा मतलब इंश्योरेंस स्कीम है, 1 year टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 1 year कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। सारे कॉजेज़ इसमें कवर्ड हैं, मेनली एक्सीडेंट वगैरह जो भी कॉजेज़ होते हैं। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, तो LIC ऑब्वियसली इसको कवर करता है। लाइफ कवरेज अप टू 55 years। प्रीमियम है इसका 436, जो आई वाज सेइंग प्रीवियसली, दिस फॉर दिस प्रीमियम इज़ 436 रुपीज़ पर एनम, ठीक है, विच विल बी ऑटो डेबिटेड इन 1 installment। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, सो यू शुड हैव अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट। कंसेंट आपको देनी होगी फॉर ऑटो डेबिट ऑफ प्रीमियम। अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आप किसी भी एक बैंक अकाउंट से ले सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस साइट इज़ ओपन टू ऑल पर्सनस
बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50, इसमें वो वाला क्राइटेरिया नहीं है जैसे उसमें टैक्स पेयर्स नहीं कर सकते थे, इसमें वो नहीं है. इट इज़ ओपन टू ऑल 18 to 50 ईयर्स. ठीक है. NRIs भी इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट है, उसमें आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि NRIs इसमें इंक्लूडेड हैं. तो हाँ, इसमें इंक्लूडेड हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हैसल फ्री प्रोसेस है. ऑल कॉजेज़ ऑफ डेथ, ठीक है, नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, एंड इवन नेचुरल डिज़ास्टर एंड पैंडमिक्स. अगेन ये भी एक है जो आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, विच कैन कन्फ्यूज़ यू. नेचुरल डिज़ास्टर एंड पैंडमिक्स है, इट विल बी कवर्ड. ठीक है. डेथ आफ्टर 30 days ऑफ एनरोलमेंट, डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स विल बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है. तो अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ आफ्टर 30 days का आपको कवर होगा. प्रोराटा प्रीमियम अगर आप मिड ईयर में करते हो तो आपको प्रोराटा प्रीमियम पे करना पड़ेगा. कवरेज 2 लाख का टर्म इंश्योरेंस है, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमने देखा LIC है. इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं 53% आर वुमेन बेनिफिशरीज़ एंड 74% जो इंश्योरेंस का इन्होंने किया है वो रूरल एरिया से इंश्योरेंस स्कीम में लोगों ने इनरोल किया है. तो अगर हम इसको देखें, बेसिकली 1 ईयर का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जो कि LIC करती है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है. इतना कवर है इसमें, 2 लाख पर ईयर का कवर है, 436 का प्रीमियम है. ठीक है. 18 to 50 ईयर्स यूनिवर्सल एज है, मतलब कोई भी कर सकता है. ठीक है. उसके बाद कुछ बेसिक्स ही इसमें चीज़ें हैं. इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर लो, 60 ईयर्स तक का है एंड 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मिलेगी 1000 to 5000, गारंटीड मंथली पेंशन है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, PFRDA, NPS. ठीक है. इनकम टैक्स पेयर्स आर नॉट अलाउड, फैमिली पेंशन ये सब है. ठीक है. और इसका बेनिफिट्स क्या हुए हैं कि 47% जो कि इसमें एनरोलमेंट किया है वो विमेन का है सब्सक्राइबर्स. ठीक है. और 7.66 करोड़ आपका टोटल सब्सक्राइबर्स हैं इसमें. सो दैट वाज द 3 topics covered for today. See you in the next session. Bye bye.